Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today's lecture is a continuation of the models based on categorical dependent variables regression. We can either use logistic regression or logit models or probit regression, which are based on probability. The basic common factor in both these models is that the dependent variable is categorical in nature. So you can express it as a binary variable having values of 0 and 1, or it may have multiple categories by encoding some kind of qualitative phenomenon or any kind of attribute. So when we have categorical dependent variables, we try to use either of logistic or probit model. It's entirely up to the discretion of the researcher, because the results of both of them are almost similar in that logit model shows the log of odds, the probit model shows the probabilities. So there is a slight difference in the coefficients, but the significance, the interpretation, the effect of an independent variable on the dependent variable is usually shown same by the probit regression or the logit regression. We have already discussed logit regression. Today we will move forward to a probit regression. So it is a type of regression analysis used to estimate a binary or polytomous dependent variable which has some categories. Usually it is a qualitative variable. Let me explain it to you. तो अगर आपके पास ऐसा वेरिएबल हो जिसमें एट्रीब्यूट्स हों, कोई क्वालिटी आपने एनकोड की हुई हो, जैसे मिसाल के तौर पे जेंडर को हम रिकॉर्ड करते हैं एज डमी वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन, तो उस वक्त कहलाएगा डमी वेरिएबल. इसी तरह और भी एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करते हैं एज डमी वेरिएबल्स एंड वी यूज़ देम इन ओएलएस रिग्रेशंस, और कोई मसला नहीं है. लेकिन यही वेरिएबल्स जैसे जेंडर है, रेस है, आपकी लोकेशन है, आपकी इनकम ब्रैकेट्स अगर आपने इनकोड की हुई हैं, आपकी कोई एप्टीट्यूड है जिसकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, तो अगर ये डिपेंडेंट साइड पे हो, लेफ्ट हैंड साइड पे हो, रिस्पांस या आउटकम वेरिएबल के तौर पे हम ले रहे हो इन दी रिग्रेशन, तो हमें यूज़ करना चाहिए probit या logistic regression, because OLS is inefficient. OLS provides inefficient estimates in the case where dependent variable has categories. So a probit regression shows the probabilities and you can interpret them in terms of probabilities. It is based on probability. Remember that the logistic regression is based on the log of odds. There is a difference in odds and probability. For example, if you are speaking of odds of something, you will divide the possibility, the probability of that outcome or that event occurring divided by the probability of that outcome or event not occurring. On the other hand, in probability, we divide the number of favorable outcomes by the number of total outcomes. तो एक फ़र्क है दोनों में. ऑड रेशोज़ में हम ये देखेंगे, मिसाल के तौर पे बारिश होगी, इसका चांस क्या है. अगर हम इस तरह कहें बारिश होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम कहेंगे ऑड्स. और जैसा आप जानते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम ऑड्स का लॉग ले लेते हैं, यानी ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये लॉग ऑफ ऑड्स के तौर पे ट्रीट होता है, जो कॉफिशेंट्स हैं आपके, डिपेंडेंट वेरिएबल अगर कैटेगोरिकल हो. लेकिन प्रॉबिट मॉडल में हम प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म्स में बात करेंगे. अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में कि प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या बारिश के केस में बारिश होने का चांस डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबिलिटीज़. मिसाल के तौर पर अगर 365 दिन है एक साल में और आप तवक्को करते हैं कि 65 दिन बारिश हुई, या पिछली रिकॉर्ड जो है वो ये कहता है कि 65 दिन बारिश हुई, तो आप कह सकते हैं 65 डिवाइडेड बाई 365 इज़ द प्रोबेबिलिटी. ऑन द अदर हैंड ऑड्स जो हैं वो होंगे बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ 65 डिवाइडेड बाई 300 इंस्टेड ऑफ 365. तो एक डिफरेंस है इसमें. प्रॉबिट रिग्रेशन क्या है, आप स्क्रीन पे चंद स्टेटमेंट्स देख रहे हैं. एक तो प्रॉबिट रिग्रेशन एनालाइजेज the predicted probability of a categorical variable. ये categorical variable binary भी हो सकता है और polytomous भी हो सकता है, यानी उसकी दो कैटेगरीज हो सकती हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं. तो अगर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं ऐसे वेरिएबल की, तो हम बाइनरी प्रॉबिट मॉडल्स इस्तेमाल करेंगे. अगर ज़्यादा कैटेगरीज हैं तो उसमें दो किस्म के मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं. अगर ये ज़्यादा कैटेगरीज किसी ऑर्डर में है, किसी रैंकिंग में है, उनमें कोई हायरार्की है, उनमें कोई तरतीब है, उनमें कोई सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी मौजूद है, जैसे आपके एजुकेशनल ग्रेड्स हैं ए बी सी, ये ग्रेड्स में एक हायरार्की मौजूद है, रैंकिंग है, ए ज़्यादा अच्छा ग्रेड है, बी इससे कम है. तो अगर ये ऑर्डर मौजूद हो तो हम ऑर्डर्ड प्रॉबिट रिग्रेशन इस्तेमाल करेंगे. और अगर कैटेगरीज मल्टीपल हों और ऑर्डर या हायरार्की या इंपॉर्टेंस या सुपीरियरिटी का कंसेप्ट ना हो, मिसाल के तौर पे
फर्ज करें जस्ट टू अंडरस्टैंड कलर ऑफ आइज, इसमें ग्रीन आइज, ब्लू आइज, ब्राउन आइज, ब्लैक आइज, इसमें कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। सो आप इनको एनकोड करेंगे एज 1 2 3 4, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप 1 को ब्लैक आइज के तौर पे लेंगे और 2 को ब्राउन आइज के तौर पे तो ब्राउन आइज सुपीरियर हो गई बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट द केस। सो इन दिस केस वी यूज मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी रिग्रेशन। द सेकंड थिंग दैट यू सी ऑन द स्क्रीन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल हैज ए लिमिटेड नंबर ऑफ आउटकम्स। सो चूंकि कैटेगोरिकल वेरिएबल है इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ आउटकम्स, ये एक डिस्क्रीट टाइप का वेरिएबल हो सकता है, इसकी कंटिन्यूस वेरिएबल की तरह अनलिमिटेड वैल्यूज नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे आप टेबुलेट का फंक्शन या फार्मूला या कमांड यूज करेंगे स्टेटा में, सो आपके पास इजीली चंद कैटेगरीज डिस्प्ले हो जाएंगी, लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए शायद एक लॉन्ग लिस्ट डिस्प्ले हो जाए। तो चंद कैटेगरीज का मतलब है कि इसकी मखसूस कैटेगरीज हैं, उनके दरमियान में कोई वैल्यूज नहीं है जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल में होता है। जैसे आप एनकोड करें कलर ऑफ आइस को एज 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 या 4 या 5, इतनी वैल्यूज होंगी। इनके दरमियान कोई वैल्यू नहीं होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, जो आपने कोड बनाया होगा वही वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट यू सी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेडिक्टेड बाय यूजिंग ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन। हम ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिराइव करेंगे बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। जैसे आपको याद होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वी हैड ए लॉजिट फंक्शन या लॉजिस्टिक फंक्शन, इसको हमने ऑड रेशोज की सूरत में डिस्क्राइब किया था और उस फंक्शन की बेस पे ये सारी रिग्रेशन हुई थी। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आखिरी इंपॉर्टेंट बात इस सिलसिले में टू बिगिन द प्रोबेबिलिटी मॉडल कि कम से कम आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस, 10 कैटेगरीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में भी थोड़ी सी कैटेगरीज हों। सो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी मिनिमम होनी चाहिए, कैटेगरीज की भी एक लिमिट है। मुनासिब डाटा होगा तो ये मॉडल्स अच्छे रिजल्ट देंगे, रिलायबल, कंसिस्टेंट, एफिशिएंट रिजल्ट्स होंगे, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज़ आपको याद होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपने एक चीज़ डिस्कस की थी क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसको हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिराइव करने के लिए प्लीज़ आप कंसंट्रेट करें ज़रा स्क्रीन पे। फाई ऑफ जेड एक फंक्शन है जो क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। आपको याद होगा जेड स्कोर्स एक्स माइनस एक्स बार ओवर सिग्मा को जेन में आता है आपके, ये जेड स्कोर्स है इनफैक्ट। सो ये फाई ऑफ जेड ये क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ जेड, फाई ऑफ जेड की जो रेंज है वो 0 और 1 के दरमियान में होती है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके जेन में हो, अगर आप स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जेन में लाएं तो उसकी वैल्यूज इसी तरह लाई करेंगी। फाई ऑफ जेड विल लाई बिटवीन 0 and 1 क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज हैं बेसिकली। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम यूज करेंगे क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट आइटम आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन एक एरर टर्म है और एक्स बीटा, एक्स एक वेरिएबल भी हो सकता है और यहाँ पे अगर एक्स आप बोल्ड देख रहे हैं तो उसका मतलब है ये एक मैट्रिक्स है, एक वेक्टर है जिसमें x1 x2 x3 मुख्तलिफ वेरिएबल हैं। बीटा भी एक वेक्टर है जिसमें बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 इस तरह मुख्तलिफ कोफिशिएंट्स हो सकते हैं। सो z को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एज एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन। अगर y इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, सो इनवर्सली फाई इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन। सो ये जो फंक्शन ऑफ y है, दिस इनवर्स फाई ऑफ y, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। यानी प्रोबेबिलिटी में भी ए शॉर्ट फॉर प्रोबेबिलिटी यूनिट। ये प्रोबेबिलिटी यूनिट्स हैं इनवर्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो आप ये तस्वुर कर सकते हैं कि एक्स बीटा आर दी जेड वैल्यूज ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक्स बीटा बेसिकली आपका रिग्रेशन इक्वेशन में, मैं इसको मैट्रिक्स के तौर पे, मैट्रिक नोटेशन में अगर आपको बताऊं तो एक्स एक वेक्टर हो सकता है जिसमें आपके पास वेरिएबल्स हो सकते हैं 2 3 4 5 जितने मर्जी, और उतने ही बीटा वेरिएबल्स एक वेक्टर में होंगे। सो नॉर्मली हम एक्स बीटा वेक्टर्स की सूरत में शो करते हैं। लेकिन अगर आपको डिफिकल्टी है, आप ये समझ सकते हैं ये एक ही वेरिएबल है एक्स और एक ही कोफिशिएंट है बीटा। सो एक्स बीटा आपकी बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन है, बीटा आपका स्लोप कोफिशिएंट है। यहाँ पे एक्स बीटा इज द जेड वैल्यू ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जाहिर है ये जितनी एस्टिमेटेड वैल्यू ज़्यादा होगी उतना एक फिनोमिनन या एक चीज़ के, एक इवेंट के अकर करने का चांस ज़्यादा होगा, उसका इम्कान ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे वैल्यू ज़्यादा होने से, फ़र्ज़ करें मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी रन कर रहा हूँ बारिश होने के चांस पे, तो जितना ये वैल्यू ज़्यादा होगी इस जेड नॉर्मल जेड वैल्यू, उतना हम कहेंगे बारिश होने का चांस ज़्यादा है। अभी आप एग्जांपल्स देखेंगे थोड़ी देर में।
So a 1 unit change in the value of x brings beta change in the z score of y. So ये बीटा एक रेट ऑफ चेंज ही हो गया, लेकिन आप थोड़ी देर में देखेंगे कि ये OLS के जो बीटा कोफिशिएंट्स हैं उनसे कुछ डिफरेंट है. सो ये जो प्रॉबिट फंक्शन आपने अभी डिराइव किया है, इसको प्लॉट करें तो एक एस टाइप का कर्व बनेगा, जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा. तो ये एस टाइप का कर्व प्रॉबिट फंक्शन को शो करेगा, लेकिन आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं जीरोज और वंस हैं. अगर बाइनरी प्रॉबिट की बात करें, बाइनरी कैटेगोरिकल वेरिएबल की बात करें, आपकी वैल्यूज या जीरो होंगी या वन होंगी. इसका मतलब है इफ़ यू प्लॉट दैम स्कैटर डायग्राम पे, सो आपके जीरो के सामने बहुत से डॉट्स होंगे और वन के सामने बहुत से डॉट्स होंगे. चले देखते हैं. ये फिगर जो आप देख रहे हैं, इसमें रेड डॉट्स आर दी एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द कैटेगोरिकल वेरिएबल. तो आपकी जो एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज हुई थी, अगर उसी को जहन में लाएं तो CGPA ग्रेटर देन 3 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब है ये एक वेरिएबल है, बाइनरी वेरिएबल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स का GPA 3 से ज़्यादा है उनको हमने 1 अलॉट कर दिया है और एल्स 0. तो अब उसको प्लॉट करें उन वैल्यूज़ को. तो जिनको 3 GPA नहीं मिला या 3 से ज़्यादा GPA नहीं मिला, उनके डॉट्स आपको 0 के अगेंस्ट राइट साइड पे नज़र आ रहे होंगे, जो क्लस्टर्ड हैं शुरू में. और इसी तरह जिनको 3 GPA मिल गया है, उनके डॉट्स जो हैं ऊपर राइट साइड पे क्लस्टर्ड हैं 1 के अगेंस्ट. और दरमियान में जो आप एस शेप की एक फिगर देख रहे हैं, ये आपका प्रॉबिट फंक्शन है, बेसिकली जो प्रिडिक्टेड प्रॉबिट फंक्शन है जो प्लॉट किया गया. तो इसमें एक्स एक्सिस पे आवर्स ऑफ वर्क और वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड मौजूद है. तो ये प्रॉबिट मॉडल है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी टर्म्स में बात करते हैं. तो प्रॉबिट रिग्रेशन बहुत सिंपली स्टेटा को यूज़ करते हुए आप रन कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, 3 किस्म की प्रॉबिट फंक्शंस हो सकते हैं. एक आप बाइनरी प्रॉबिट मॉडल यूज़ कर रहे हैं. बाइनरी प्रॉबिट मॉडल का मतलब है कि आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें 2 कैटेगरीज हैं, जिसको हमने 0 और 1 2 नंबर्स अलॉट कर दिए हैं उनको सिंबलाइज करने के लिए. ये कोड्स हैं. ये नंबर कोई मीनिंगफुल नहीं है. इसका मतलब है आप मिसाल के तौर पे CGPA 3 से ज़्यादा है उसको 1 अलॉट कर दें, और नहीं है तो 0 अलॉट कर दें. आप अदरवाइज भी कर सकते हैं. CGPA 3 से कम है तो 1 अलॉट कर दें, अदरवाइज 0 कर दें. तो आपकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होगी, वैल्यूज़ वही होंगी. अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल्स में. सो 3 किस्म के हमारे पास प्रॉबिट मॉडल्स हो सकते हैं. एक वो मॉडल जिसमें आपके पास कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल में 2 आउटकम्स हो सकती हैं, 0 या 1 इस केस में. इसीलिए हम इसको कहते हैं बाइनरी प्रॉबिट मॉडल. दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हों. जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी, जैसे लेट्स से टॉक ऑफ इनकम ब्रैकेट्स. फर्ज करें मैं इनकम को कैटेगराइज कर देता हूँ. इनकम एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, लेकिन उसको मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ. मैं कह सकता हूँ वेरी लो इनकम, मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हाई इनकम. तो ये कैटेगरीज बन जाएंगी. अब जाहिर है आप अरिथमेटिक्स और रिग्रेशन इन स्ट्रिंग्स के ऊपर रन नहीं कर सकते, सेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑपरेशन. तो इन स्ट्रिंग्स को आपको कोड्स देने पड़ेंगे. फर्ज करें मैं कोड देता हूँ वेरी लो इनकम 1, लो इनकम 2, मिडिल इनकम 3, अपर मिडिल इनकम 4 एंड हाई इनकम 5. तो ये 1 थ्रू 5 वैल्यूज़ हैं जो इनकम ब्रैकेट्स को या इनकम की कैटेगरीज को रिफ्लेक्ट कर रही हैं. अब गौर करें, ये जो कैटेगरीज हैं इनमें एक ऑर्डर मौजूद है, एक हायरार्की है. जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ठीक है, उन लोगों की जो इनकम जो 5 वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, 1 की कैटेगरी में फॉल करने वालों से ज़्यादा इनकम है. इसी तरह 4 वालों की इनकम 3 से ज़्यादा है. सो जैसे नोमेरिक्स में 5 इज़ ग्रेटर देन 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो जिन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन चीज़ों में भी इसी तरह की एक तरतीब या ऑर्डर या हायरार्की मौजूद है. सो इसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड कैटेगरी, ऑर्डिनल वेरिएबल. सो ये जो इस किस्म के वेरिएबल्स होंगे जब आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स की सूरत में, वी विल यूज़ ऑर्डर्ड प्रॉबिट मॉडल. जैसे आपने ऑर्डर्ड लॉजिक रिग्रेशन रन की. सो पहली चीज़ हो गई बाइनरी प्रॉबिट, दूसरी चीज़ हो गई ऑर्डर्ड प्रॉबिट. अब यही मल्टीपल कैटेगरीज, अगर नंबर्स में तो हायरार्की आपको नजर आएगी, 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, लेकिन जिन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके ये कोड्स हैं, उनमें कोई सुपीरियरिटी मौजूद नहीं है. मिसाल के तौर पे मैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स को उनके स्पेशलाइजेशन के तौर पे कैटेगराइज कर दूं. फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये फाइनेंस वाले लोग हैं, ये अकाउंटिंग वाले लोग हैं, ये मार्केटिंग वाले हैं, ये मैनेजमेंट वाले हैं, ये इकोनॉमिक्स वाले हैं. तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं. मुझे कोई ना कोई तो इनको कोड देने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल मैं कोड देता हूँ मार्केटिंग 1, फाइनेंस के स्टूडेंट्स को 2,
इकोनॉमिक्स को 3 एंड सो ऑन। सो ये इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग कोई एक दूसरे से सुपीरियर ट्रीट नहीं होगा, ये एक जैसी कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ हैं। नंबर्स तो जाहिर है 5 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन वो सब्जेक्ट जो 5 से रिप्रेजेंट हो रहा है वो ग्रेटर देन वो सब्जेक्ट नहीं है जो 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ऑर्डर मौजूद नहीं है, तरतीब नहीं है, हायरार्की नहीं है, सुपीरियरिटी नहीं है। तो क्योंकि तरतीब नहीं है तो हम ऑर्डर्ड प्रॉबिट नहीं बल्कि मल्टीनोमियल प्रॉबिट मॉडल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली जो कैटेगरी थी जिसमें 2 आउटकम्स हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल में 0 एंड 1, वो है बाइनरी प्रॉबिट। तो पहले हम देखेंगे बाइनरी प्रॉबिट रिग्रेशन में स्टेटा में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं प्रॉबिट इज़ दी कमांड जो बाइनरी प्रॉबिट रन करने के लिए होती है। उसका सिंटैक्स नज़र आ रहा है, प्रॉबिट डिपेंडेंट वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफ एंड इन एंड वेट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन ऑप्शंस। स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको याद होगा ऐसी चीज़ों के लिए है जो ऑप्शनल हैं। तो ये बड़ी ख़ास बात है, इसका मतलब है हम प्रॉबिट को डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रन कर सकते हैं बगैर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, ये एम्प्टी मॉडल कहलाएगा। दूसरी अहम बात, प्रॉबिट में प्रॉब जो है अंडरलाइन हुआ है। तो मैं आपको याद करवा दूं, जो सिंटेक्स में अंडरलाइंड पार्ट है वो शॉर्टकट है इसके लिए। सो इफ़ यू राइट प्रॉब, वो प्रॉबिट ही ट्रीट होगा स्टेटा में। तो ये इसका सिंटेक्स है। अगर आप कमांड लाइन यूज़ नहीं करना चाहते, टाइप नहीं करना चाहते, उससे घबराते हैं, तो मेन्यू यूज़, आप क्लिक करेंगे ऑन स्टैटिस्टिक्स, बाइनरी आउटकम्स, और जैसा आप देख रहे हैं प्रॉबिट रिग्रेशन। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे एक विंडो खुल जाएगी, आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी कौन सा डिपेंडेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल है, कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कोई ऑप्शंस अगर देना चाहते हैं वो क्या हैं, कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो इफ़ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप ओके करेंगे, प्रॉबिट रिग्रेशन रन हो जाएगी। जबकि यही काम कमांड लाइन से टाइप करके एक मिनट से भी कम में हो जाता है। आप जस्ट टाइप करते हैं, कंडीशंस लगा देते हैं, रन करते हैं। वो विंडोज़ में जाके क्लिक्स करना और इन्फॉर्मेशन भरना ज़्यादा लंबा काम है। तो बहरहाल दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो तरीका ये है कि आप क्लिक करेंगे स्टैटिस्टिक्स पे, बाइनरी आउटकम्स, प्रॉबिट रिग्रेशन, व्हेन द विंडो ओपन्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड क्लिक ओके। ये तरीका है और प्रॉबिट रिग्रेशन रन हो जाएगी। अभी हम एग्जांपल्स लेंगे और उसकी बातें, उसके कोफिशिएंट्स, उसकी जो नतीजा आता है उसको इंटरप्रेट भी करेंगे। So to take an example, we'll use the file that we have created for you, the logitprobit.dta. .dta is an extension for stata data files. तो ये आपको अवेलेबल होगी लेक्चर नोट्स के साथ। सो जब आप ये फाइल खोलेंगे, सो पहला स्टेप ये नहीं है कि आप झट एक प्रॉबिट रिग्रेशन रन करें। पहले आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए, देखना चाहिए क्या प्रॉबिट रिग्रेशन रन होनी चाहिए, कहीं ओएलएस से तो काम नहीं चलता, कोई और मसला तो नहीं है। तो थोड़ा सा आप डाटा को जानेंगे। तो आपको याद होगा डाटा को जानने के लिए जो हमारे पास कमांड्स हैं, यू हैव डिस्क्राइब, यू हैव समराइज, यू हैव लिस्ट, यू हैव टैब स्टैट एट्सेट्रा, टेबुलेट। ये कमांड्स आप थोड़ी बहुत यूज़ करेंगे, डाटा के बारे में आगाही हासिल करेंगे, डाटा को जानेंगे, उसकी नेचर देखेंगे, फिर फैसला करेंगे कौन सा मॉडल होगा। अगर कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें कैटेगरीज हैं, ओएलएस रन नहीं हो सकती जो आप करते रहे हैं, और उस पर आपको लॉजिस्टिक या प्रॉबिट रिग्रेशन रन करना पड़ेगी। लेट्स ट्राई टू नो द डाटा। तो पहली चीज़ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इज़ द डिस्क्राइब, द रिजल्ट ऑफ डिस्क्राइब स्टेटमेंट। तो ये logitprobit.dta आपके लिए नई फाइल है। देखें इसमें 40 ऑब्जर्वेशंस हैं विद 5 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में देखें CGPM3, ये CGPA है मास्टर डिग्री का। ये कहाँ से पता चला? लुक एट द वेरिएबल लेबल, CGPA इन मास्टर्स ग्रेटर देन 3। तो जिनका GPA 3 से ज़्यादा है उनके लिए ये वेरिएबल आई थिंक विल बी 1 एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इट विल बी 0। तो ये एक बाइनरी वेरिएबल होगा। अभी देखते हैं समराइज वगैरह में क्या सिचुएशन सामने आती है। गेट लेबल में हमें नज़र आ रहा है गेट जनरल स्कोर, एज एट द टाइम ऑफ मास्टर डिग्री, यानी करंट एज नहीं है, ये हमें लेबल से पता चल रहा है। HRS आवर्स, एवरेज आवर्स स्टडीड पर वीक, एंड देन यू हैव ए वेरिएबल ऑन जेंडर, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो डिस्क्राइब की स्टेटमेंट आपको बता रही है कि डाटा के अंदर क्या वेरिएबल्स हैं और इसके मुताबिक आप मॉडल को रन करेंगे। सो द नेक्स्ट इज समराइज विच enables you to know the data properly. So CGPM3 जिसके बारे में मैंने सोचा था शायद ये एक बाइनरी वेरिएबल हो, वाकई ऐसा है क्यों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देखें 0 एंड 1 और मीन भी 0.5 के लगभग है, 0.525, इसका मतलब है 1 ज़्यादा होंगे डेफिनेटली इसमें। गेट 50 से 88 तक इसकी रेंज है।
50 से नीचे शायद इसलिए नहीं कि जो एडमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका शायद गैट स्कोर 50 से कम नहीं होता। इसी तरह एज है 19 से 26 साल विद एवरेज एज ऑफ 22। आवर्स, याद रहे कि ये आवर्स हैं जो आप स्टडी के लिए लगा रहे हैं, जो आपके रिस्पोंडेंट स्टडी के लिए ऑन दी एवरेज लगाते हैं। 11.95 इज़ दी एवरेज, लेकिन रेंज है 1 से लेकर 23 घंटे। जेंडर 01, ये भी एक बाइनरी वेरिएबल है, लेकिन चूंकि ये इंडिपेंडेंट साइड पे होगा, राइट हैंड साइड पे होगा, दिस इज ए डमी वेरिएबल। सो फर्ज करें हम सोचते हैं एक मॉडल के बारे में कि CGPA का ताल्लुक किस किस वेरिएबल से हो सकता है। हो सकता है CGPA एज से इफेक्ट होती हो, पिछले गैट के स्कोर से रिफ्लेक्ट होती हो। जैसे जिनका गैट स्कोर अच्छा है, हो सकता है कि उनका CGPA भी अच्छा हो। मैं सोच सकता हूँ क्योंकि गैट स्कोर जिनका अच्छा है वो ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा बेहतर नॉलेज वाले हो सकता है। सिमिलरली और भी वेरिएबल्स हैं जो हम ले सकते हैं। सो लेट्स नो द वेरिएबल्स फर्दर थ्रू द टेबुलेट स्टेटमेंट। सो टैब 1 CGPM3 एंड जेंडर। सो ये टैब 1 वो कमांड है जो हम टैब की जगह यूज़ करते हैं जब हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए अलग-अलग टेबुलेशन देखनी हो, फ्रीक्वेंसी टेबल्स देखने हो। जैसे आप लिख सकते थे टैब CGPM3, टेबल आ जाती। फिर आप लिखते टैब जेंडर और क्लिक, टेबल आ जाती। इसको आपने एक ही स्टेटमेंट में किया, टैब 1 CGPM3 एंड जेंडर। सो दो टेबल्स आपके सामने हैं जो फ्रीक्वेंसी टेबल्स हैं। इससे हमें पता चलता है कि जिनका CGPA मास्टर डिग्री में 3 से ज़्यादा है उनकी तादाद 21 है, क्योंकि 1's फ्रीक्वेंसी इज़ 21। सिमिलरली जेंडर में 0 और 1, इसमें अगर 0 फीमेल है तो वो 16 है, 1 इज़ 24। ये हमें लेबल से पता चला मेल जो है वो 1 है, उसको हमने ऐसे इनकोड किया हुआ है। सो ये टेबल्स आपको थोड़ा बहुत हाईलाइट करती हैं कि वेरिएबल्स की नेचर क्या है। मिसाल के तौर पे ये जो वेरिएबल है CGPM3, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इसकी दो वैल्यूज़ हैं 0 या 1, तो ये बाइनरी कैटेगोरिकल वेरिएबल है। अगर ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हमें प्रॉबिट मॉडल यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको एक मॉडल के बारे में बता रहा था कि शायद हम सोचें कि CGPA का ताल्लुक एज से हो सकता है, जिसकी एज ज़्यादा हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, ज़्यादा समझदार हो, जिसका पिछला गैट स्कोर ज़्यादा हो, वो इंडिकेशन है कि वो बच्चा बेहतर है। हो सकता है उसका CGPA ज़्यादा हो, पॉसिबल है, लेट्स टेस्ट फॉर दैट। सिमिलरली और वेरिएबल आप जो आवर्स लगाते हैं स्टडी के, उससे भी आपका CGPA इफेक्ट होगा। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो हम समझते हैं शायद CGPA को इफेक्ट करते हैं। सो CGPA डिपेंड्स, मे बी इट मे डिपेंड ऑन दीज वेरिएबल्स। तो ये हम प्रॉबिट मॉडल से क्यों चेक करेंगे? इसलिए कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है CGPA, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है। हम OLS लगा नहीं सकते थ्योरेटिकली। जब आप लगाएंगे लग जाएगी, लेकिन वो रिजल्ट्स इनएफिशिएंट होंगे, वो ठीक नहीं होंगे। सो यू शुड अप्लाई फॉर प्रॉबिट और लॉजिट रिग्रेशन। डेटा डिस्क्राइब करने की एक और यूजफुल कमांड बिफोर मूविंग टू दी एक्चुअल प्रॉबिट रिग्रेशन इज टैब स्टैट। उससे हमारे सामने मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगी। तो ये आपके सामने है। सो मेन वेरिएबल्स आर CGPM3, गैट, एज, आवर्स एंड जेंडर। इसमें मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशंस, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ आपके सामने हैं। और मुझे कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़, कोई आउटलायर्स, कोई प्रॉब्लम एज सच नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे डाटा क्लीन है। तो CGPM3 एंड जेंडर आर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अगर ये वेरिएबल्स राइट हैंड साइड पे होते, डमी वेरिएबल्स कहलाते, हम इन पर OLS लगा सकते थे। लेकिन अगर CGPM3 अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और लेफ्ट हैंड साइड पे है, रिस्पॉन्स या आउटकम वेरिएबल है, सो हम इस पे OLS नहीं लगा सकते। इस मॉडल पे प्रॉबिट या लॉजिट में से सिलेक्शन करनी होगी, जैसे हम यहाँ प्रॉबिट मॉडल रन करने जा रहे हैं। तो याद रहे प्रॉबिट की सिंपल कमांड है प्रॉबिट। अगर आपकी वेरिएबल में दो कैटेगरीज हो तो हम लगाएंगे प्रॉबिट CGPM3 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की लिस्ट। सो आप देख रहे हैं प्रॉबिट रिग्रेशन का रिजल्ट स्टेटा में। सो व्हेन यू रैन द प्रॉबिट CGPM3 ऑन गैट, एज, आवर्स एंड जेंडर, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कुछ आइट्रेशंस। ये एक आइट्रेटिव प्रोसेस इसलिए है कि इसमें हम लॉग लाइकलीहुड को एक आइट्रेशन से मैक्सिमाइज करते हैं। सो जब मजीद मैक्सिमाइज ना हो तो हम कहते हैं ये लास्ट आइट्रेशन थी, इसमें लॉग लाइकलीहुड इज -8.36, द लास्ट वन। ये नीचे भी रिपोर्ट हो रही है मेन रिग्रेशन के साथ। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 40। लाइकलीहुड रेशो chi2 जो है वो बेसिकली आप समझें जैसे गुडनेस ऑफ फिट हम देखा करते थे OLS में, तकरीबन वैसी ही बात है। सो हम देखते हैं बेसिकली इस लाइकलीहुड रेशो से कि एम्प्टी मॉडल की निस्बत ये जो वेरिएबल्स वाला मॉडल है ये बेहतर है या नहीं है। सो इस लाइकलीहुड रेशो का ताल्लुक उस मैक्सिमम लॉग लाइकलीहुड से है जो -8.36, उससे कैलकुलेट होता है। सो P वैल्यू इज 0, जिसका मतलब है कि ये एक अच्छा फिट है। कॉफिशेंट्स, ये प्रोबेबिलिटीज आप समझें, इससे पता चलता है कि अगर गैट 1 यूनिट स्कोर बढ़ जाए तो आपके GPA
के 3 से ज़्यादा होने के जो चांस है वो 0.16 इंक्रीज़ हो जाएगी एंड सो ऑन. सो अगर आप पी वैल्यूज़ देखें तो जेंडर के अलावा तमाम वेरिएबल्स सिग्निफिकेंट हैं, इनके साइंस पॉजिटिव हैं. सो जनरली हम रिसर्च में आमतौर पे इन कोफिशिएंट्स पे इतना, वैल्यूज़ पे, मैग्नीट्यूड पे इतना फोकस नहीं करते, इतना मीनिंग नहीं है. हम इनके साइंस और सिग्निफिकेंस देखते हैं. सो हम कह सकते हैं कि गैट स्कोर ज़्यादा होने से जीपीए का ज़्यादा होने का चांस बढ़ जाएगा मास्टर्स में. एज ज़्यादा होने से भी चांस बढ़ जाएगा. आवर्स ऑफ वर्क जितने ज़्यादा होंगे सीजीपीए 3 से ज़्यादा होने का की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. और जेंडर सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेल या फीमेल होने से कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ता सीजीपीए के ऊपर. अब इनको डिटेल में देखते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देखेंगे. सो प्रोबेबिलिटी की यूजुअल डेफिनेशन है जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. इस बारे में हम बात कर चुके हैं. सो सिग्निफिकेंस वही है जो लॉजिट मॉडल में है. पहली स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं, तो जैसे आपने लॉजिट रिग्रेशन रन की, यही सेट ऑफ वेरिएबल्स उठाएं, प्रोबिट की जगह लिखें लॉजिट, और आपके सामने कुछ कॉफिशेंट्स और कुछ सिग्निफिकेंस आ जाएंगी. जेंडर वहां भी यकीनन इनसिग्निफिकेंट होगा. सो आप प्रोबिट और लॉजिट में से कोई भी रिग्रेशन यूज कर सकते हैं. साइंस वही होंगे. वैल्यूज या मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि वो ऑड रेशोज हैं, उनकी लॉग्स हैं और ये प्रोबेबिलिटीज हैं. सो मॉडल एज ए होल इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. ये हमें काई स्क्वायर की पी वैल्यू से पता चला. चेंज इन जेड स्कोर या प्रोबेबिलिटी ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है आपके कोफिशिएंट्स का मतलब. तो ये जेड स्कोर में, स्टैंडर्डाइज स्कोर में चेंज है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट की चेंज आती है. अगर पॉजिटिव साइंस है तो एक ही डायरेक्शन में चेंज आएगी. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेगा, जैसे गैट का स्कोर बढ़ेगा, तो सीजीपीए 3 से ज़्यादा होने का चांस बढ़ जाएगा क्योंकि उसका जेड स्कोर बढ़ जाएगा. याद रहे कि कॉफिशिएंट्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो ओएलएस की तरह नहीं है. ये स्लोप कॉफिशिएंट्स नहीं है, इसलिए ये मार्जिनल इफेक्ट्स नहीं है. ओएलएस में जो बीटास थे वो स्लोप कॉफिशिएंट्स कहलाते थे. अगर मैं आपसे पूछता कि x1 वेरिएबल का इम्पैक्ट y पे क्या होगा, या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x1, तो आप कहते हैं बीटा 1. जो आप नोटेशंस इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वेरिएबल का इम्पैक्ट, मार्जिनल इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ना सिर्फ उस वेरिएबल की वैल्यू पे होता है उसका इन्हिसार. जब ये वैल्यू बदल जाए तो वो मार्जिनल इफेक्ट भी बदल जाता है, चेंज होता रहता है मार्जिनल इफेक्ट. ओएलएस में चेंज नहीं होता था, एक जैसा मार्जिनल इफेक्ट था. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है. सिमिलरली ना सिर्फ उस वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, बल्कि मार्जिनल इफेक्ट दूसरे जो वेरिएबल्स मॉडल में मौजूद हैं उनकी वैल्यूज के ऊपर भी डिपेंड करेगा. सो मार्जिनल इफेक्ट्स आर नॉट दीज कोफिशिएंट्स. सो इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन द गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो जिसको आप डेरिवेटिव कह सकते हैं, वो ये कोफिशिएंट्स नहीं है. सो आपने ध्यान से इसको इंटरप्रेट करना है. रादर आप मैग्नीट्यूड्स इंटरप्रेट ना करें, साइंस को देखें, सिग्निफिकेंस देखें. अच्छा, अब प्रिडिक्शन हमने करनी है. जैसे आप ओएलएस में प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकालते थे, ट्रेंड वैल्यूज निकालते थे, फोरकास्ट करते थे, सिमिलरली यहाँ पे भी आप कर सकते हैं. तो वो प्रोबिट फोरकास्ट जो होगी वो होगी बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू गैट स्कोर प्लस बीटा 2 इंटू एज प्लस बीटा 3 इंटू आवर्स. लेकिन ये जब आप वैल्यूज़ रखेंगे बीटाज में तो आपके सामने प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी. बीटाज जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एफ ऑफ बीटा नॉट प्लस बीटा 1 गैट प्लस बीटा 2 एज प्लस बीटा 3 आवर्स, where betas are the coefficients generated by the probit regression. So ये probability होगी CGPA greater than 3 की. इसका मतलब है ये डिपेंड करती है ना सिर्फ गैट की वैल्यू पे, अगर आप गैट पे फोकस कर रहे हैं, बल्कि एज की वैल्यू, आवर्स की वैल्यू. सो अगर गैट स्कोर चेंज होता है, उसका इफेक्ट आपकी CGPA की प्रोबेबिलिटी 3 से ज़्यादा होने के ऊपर ना सिर्फ गैट के स्कोर पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि एज पे भी डिपेंड कर रहा है और उन आवर्स पे भी डिपेंड कर रहा है जो रिस्पोंडेंट लगा रहा है. अगर ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ये इफेक्ट चेंज हो जाएगा. अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, सूडो आर स्क्वायर. चूँकि आर स्क्वायर जैसी चीज़ जो कि ओएलएस में अवेलेबल होती थी, यहाँ अवेलेबल नहीं है. यहाँ और मैकफैडन सूडो आर स्क्वायर कैलकुलेट होता है बेसिकली. तो ये मेजर भी आर स्क्वायर की तरह कहलाता है, सूडो आर स्क्वायर कहलाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 और 1 के दरमियान होती है. और जितना इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, हम कहते हैं जी मॉडल की प्रिडिक्टिव पावर ज़्यादा हो गई है. सो इट इज़ लाइक द आर स्क्वायर, इट्स नॉट द आर स्क्वायर. सो हायर वैल्यूज ऑफ इट इंडिकेट बेटर मॉडल फिट, लोअर वैल्यूज इंडिकेट लोअर मॉडल फिट. सो सूडो आर स्क्वायर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. जैसे इसमें मैकफैडन सूडो आर स्क्वायर यूज़ हुआ है, और भी लोगों ने कैलकुलेट किए हुए हैं. वो सारे मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखते हैं, मोर और लेस एक रेंज में. सो यहाँ हम चूँकि मैकफैडन आर स्क्वायर की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, और वो आर स्क्वायर है नहीं,
उसको हम सूडो आर स्क्वायर कह रहे हैं, क्योंकि इससे मॉडल के फिट का उसी तरह पता चलता है जैसे आपको आर स्क्वायर से OLS में पता चलता था। अच्छा, प्रोबिट आपने रन कर ली, अब आप कुछ स्टैटिस्टिक्स देखना चाहते हैं, जैसे एक सूडो आर स्क्वायर था, मैकफैडन आर स्क्वायर, और भी स्टैटिस्टिक्स हैं। सो एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। एक कमांड है जिसे हम कहते हैं फिट स्टैट। ये चूंकि यूज़र रिटर्न कमांड है, सो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप फाइंड इट, एक कमांड है स्टैटा में, फाइंड इट फिट स्टैट, तो ये खुद ही सर्च होगी अगर इंटरनेट ठीक है, और उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, तब आप ये कमांड रन कर सकते हैं। उसका रिजल्ट ज़रा स्क्रीन पे देखिए। याद रहे कि ये पोस्ट रेग्रेशन कमांड है। पहले आप प्रोबिट रन करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे फिट स्टैट एंड यू विल एंटर। सो आप यहाँ बहुत से स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, मैं एक दो पे बात करूंगा। मिसाल के तौर पे मैकफैडन आर स्क्वायर इज 0.698, ये वही आर स्क्वायर है जो आपकी प्रोबिट में आया होगा। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ क्राइटेरियन है, जैसे AIC, BIC, मैक्सिमम लाइकलीहुड आर स्क्वायर है। जैसे मैंने आपको बताया मुख्तलिफ सूडो आर स्क्वायर कैलकुलेट होते हैं। सो यहाँ 3-4 मुख्तलिफ आर स्क्वायर हैं। इसी तरह मैकफैडन एडजस्टेड आर स्क्वायर है। ये सारी वैल्यूज़ मॉडल के फिट पे बात करती हैं कि ये मॉडल कितना फिट है। नाउ लेट्स डिस्कस द ऑर्डर्ड प्रोबिट मॉडल और ऑर्डर्ड प्रोबिट रिग्रेशन। ये रिग्रेशन उस वक्त इस्तेमाल होगी व्हेन यू हैव ए कैटेगोरिकल वेरिएबल विद मल्टीपल कैटेगरीज, यानी 2 से ज़्यादा कैटेगरीज, लेकिन उन कैटेगरीज में कोई ऑर्डर मौजूद है, कोई तरतीब है, कोई हायरार्की मौजूद है। तो आगे जाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए आपको वाज़े कर दूं कि ये ऑर्डर्ड कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होता है। 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं। मिसाल के तौर पे एज ब्रैकेट्स, जब हम सर्वे करते हैं तो हम एज रिकॉर्ड करते हैं, और अपनी आसानी के लिए उसको मुख्तलिफ ब्रैकेट्स में भी ले आते हैं। हो सकता है हम एज कंटिन्यूस वेरिएबल के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे हों, जो एज है वो लिख दी, लेकिन बाद में उसकी ब्रैकेट्स बना ली, जैसे 15 साल से छोटे, 15 से 30 साल, 30 से 40 साल एंड सो ऑन। ये मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स हैं। अब इन ब्रैकेट्स को एनकोड किया जाता है। जैसे 15 साल से कम उम्र लोगों को मैं कोड दे देता हूँ 1, 15 से 30 साल वालों को मैं कोड दे देता हूँ 2, 30 से 40 वालों को कोड देता हूँ 3। तो ये 1, 2, 3 वो कोड्स हैं, वो एनकोडिंग है जो हमने एज ब्रैकेट्स की है। अब इनमें एक ऑर्डर मौजूद है। इस किस्म का वेरिएबल अगर डिपेंडेंट हो तो हम ऑर्डर्ड प्रोबिट मॉडल यूज़ करेंगे। सिमिलरली आपके एजुकेशनल ग्रेड्स हैं, जैसे आप वाकिफ़ होंगे सेमेस्टर सिस्टम में आप पढ़ रहे हैं कि A, B, C ये ग्रेड्स आपको दिए जाते हैं बेस्ड ऑन योर परसेंटेज मार्क्स। अब फ़र्ज़ करें मैं इसकी ऐसी एनकोडिंग करना चाहूँ कि इन ग्रेड्स को प्रिडिक्ट करने के लिए एक वेरिएबल बनाऊँ जो न्यूमेरिक होना चाहिए इन नेचर, चाहे वो कैटेगोरिकल हो, बाइनरी हो, पॉलीटोमस हो, जो मर्जी हो। सो मैं इन एजुकेशनल ग्रेड्स की रैंकिंग कर दूंगा, जैसे F ग्रेड 1 है, D ग्रेड जो है वो 2 है, C ग्रेड जो है वो 3 है एंड सो ऑन। तो अब ग्रेड्स में एक हायरार्की मौजूद है, तरतीब है। चूंकि ये 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं और इनमें तरतीब भी मौजूद है, सो ये एक ऑर्डर्ड ऑर्डिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल ली इनकम की। इनकम ब्रैकेट्स को भी अगर आप एनकोड करें प्रॉपरली तो ये भी एक तरतीब में है, और हायर वैल्यू का मतलब है हायर इनकम ब्रैकेट। तो ये ऑर्डर प्रोबिट मॉडल है। ऑर्डर रिवर्स भी हो सकता है, इससे मसला नहीं होता। किसी चीज़ का जो साइज़ है ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है। जैसे शर्ट साइज़ है, कॉलर साइज़, शू का साइज़ है, कोई और साइज़ हो सकता है। तो आप स्मॉल से शुरू होते हैं, मीडियम पे आते हैं, लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज। अगर आप इनको एनकोड करें एज 1, 2, 3, 4, क्योंकि आप स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह इनको स्ट्रिंग्स को यूज़ नहीं कर सकते अपनी रिग्रेशन में, एनकोडिंग करनी पड़ेगी। सो आप स्मॉल को कहेंगे 1, मीडियम को कहेंगे 2, लार्ज इज़ 3, एक्स्ट्रा लार्ज इज़ 4। सो ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपको बताएंगी कैटेगरी कौन सी है। सो अब इसमें भी एक ऑर्डर मौजूद है। सो ये ऑर्डर जो है ये बताएगा कि आपको ऑर्डर्ड प्रोबिट मॉडल यूज़ करना चाहिए। बहुत से सर्वे आप देखेंगे जिसमें आप ओपिनियंस रिकॉर्ड करेंगे या डिसीजंस रिकॉर्ड करेंगे। मिसाल के तौर पे ओपिनियंस को ले लें। आप एक स्टेटमेंट देते हैं और रिस्पोंडेंट से कहते हैं कि टेल मी इफ़ यू स्ट्रांगली एग्री, और यू एग्री, और यू आर न्यूट्रल, और यू डिसएग्री, और यू स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये ओपिनियंस हैं। जाहिर है आप उनको एक स्केल पे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो नंबर्स होते हैं। अब ये स्केल भी एक किस्म का ऑर्डर शो कर रहा है, अगरचे मैं कहूँगा कि इसमें ऑर्डर नहीं है, ये जस्ट एक कैटेगोरिकल वेरिएबल की एग्जांपल है। तो ये जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपने देखी, इसमें आप फ़ौरन देख सकते हैं कि कब एक वेरिएबल में, कैटेगरी में ऑर्डर मौजूद है और कब नहीं है। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, एजुकेशनल स्पेशलाइजेशन की है। इसमें ऑर्डर मौजूद नहीं है,
लेकिन आप इनकोड करते हैं एज 1 2 3 4 टू डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस एज मार्केटिंग, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, तो इससे कोई ऑर्डर या सुपीरियरिटी शो नहीं होती। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिस पे ऑर्डर्ड प्रॉफिट मॉडल नहीं लगेगा, ऑल्दो मल्टीपल कैटेगरीज हैं। इस पे हम बाद में मल्टीनोमियल प्रॉफिट की बात करेंगे। सो ऑर्डर्ड प्रॉफिट की कमांड है ओ प्रॉफिट। प्रॉफिट वाज यूज्ड फॉर प्रॉफिट मॉडल्स। ऑर्डर्ड प्रॉफिट विल बी यूज्ड बाय द स्टेटमेंट ओ प्रॉफिट डिपेंडेंट वेरिएबल, लिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इफ एंड इन कंडीशंस एंड ऑप्शंस एटसेट्रा। तो आइए देखते हैं कि ये ओ प्रॉफिट क्या है और उसका सिंटैक्स क्या है। तो अगर आप मेन्यू यूज कर रहे हैं तो यू विल क्लिक ऑन स्टैटिस्टिक्स, ऑर्डिनल आउटकम्स, ऑर्डर्ड प्रॉफिट रिग्रेशन। और कमांड का सिंटैक्स जैसे मैं आपको बता रहा था, ओ प्रॉफिट डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिस्ट, इफ एंड इन वेट कंडीशंस एंड ऑप्शंस। तो यहाँ पे हम एक ऐसी फाइल यूज करते हैं जो आप अक्सर यूज करते रहे हैं, आपको याद होगी ऑटो, सिस यूज ऑटो से आप वो फाइल खोल सकते हैं। उसके बाद इसमें एक वेरिएबल था रेप 78 यानी रिपेयर रिकॉर्ड ऑफ 1978। तो इसमें हमने देखा था कि गाड़ी जो है वो 1978 में कितनी दफ़ा मकैनिक के पास गई। सो जाहिर है कितनी दफ़ा का मतलब है इसमें 1 2 3 4 इस तरह वैल्यूज़ होंगी। सो इसको ज़रा चेक करने के लिए हम टेबुलेट की कमांड यूज़ कर सकते हैं कि क्या वैल्यूज़ हैं जो इस REP 78 में मौजूद हैं, ज़रा देखिए। सो व्हेन आई सेड टैब रेप 78, तो रिपेयर रिकॉर्ड ऑफ 1978 1 से लेकर 5 तक रेंज कर रहा है। तो 5 कैटेगरीज की गाड़ियां होंगी। एक वो गाड़ियां जो एक दफ़ा मरम्मत हुई हैं, एक वो जो 2 दफ़ा हुई हैं, फिर जो 3 दफ़ा हुई हैं, एंड सो ऑन। सो ये वेरिएबल एक अच्छा ऑर्डर्ड प्रॉफिट मॉडल हमें दे सकता है। सो द स्टेटमेंट इज ओ प्रॉफिट, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ओ प्रॉफिट रेप 78 फॉरन लेंथ एंड MPG माइलेज पर गैलन। तो जैसे प्रॉफिट मॉडल में आइट्रेशंस होती हैं, पहले वो होंगी, लॉग लाइकलीहुड मैक्सिमाइज होगा, -75.51 इज द मैक्सिमम लॉग लाइकलीहुड। पी वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर राइट साइड पे देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के नीचे LR लाइकलीहुड रेशो, उसके नीचे प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन काई स्क्वायर इज 0, यानी आप 5% या इवन 1% पे कह सकते हैं कि ये मॉडल अच्छा फिट है। देन यू हैव द कोफिशिएंट्स फॉरन लेंथ और MPG। अच्छा, इन कोफिशिएंट्स के अलावा एक नई चीज़ आप देख रहे होंगे, कट वैल्यूज़, कट 1, कट 2, कट 3, ये वो वैल्यूज़ हैं। इसका ताल्लुक है लेटेंट वेरिएबल मॉडल से। हमारा जो लेटेंट वेरिएबल है, हमारा जो प्रिडिक्शन है, वो कंटिन्यूस वेरिएबल आएंगे। उसका जवाब जो है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, 6 आ सकता है, 6.5 आ सकता है, 10 कुछ भी आ सकता है। सो हम एक लेटेंट वेरिएबल मॉडल अभी थोड़ी देर में देखेंगे भी, हम यूज़ करते हैं कि अगर वैल्यू इस वैल्यू तक हो तो कैटेगरी आउटकम 1 है, अगर इस वैल्यू तक वैल्यू हो तो कैटेगरी आउटकम 2 है, एंड सो ऑन। सो ये जो मैपिंग है ये इन कट वैल्यूज़ के थ्रू होती है। सो ये कट वैल्यूज़ जो दी गई हैं 5.36 तक अगर वैल्यू होगी तो हम कहेंगे ये कैटेगरी 1 है। इसकी जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 का मतलब है वो गाड़ियाँ जो एक दफ़ा रिपेयर हुई हैं। सो 6.28 तक, यानी 5.36 और 6.28 के दरमियान में अगर वैल्यू आएगी सो हम कहेंगे कैटेगरी 2 है। तो ये कट वैल्यूज़ हमें हेल्प करती हैं कैटेगराइज करने में। तो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट are different from the profit model as well as from the logit model. So magnitudes different होंगे, साइंस तकरीबन वही होंगे। अगर आप इस पे लॉजिट रन करते, ओ लॉजिट अगर आपको याद हो, ऑर्डर्ड लॉजिट मॉडल, वही सिग्निफिकेंस आती, वही साइंस आते मोर और लेस तकरीबन सारे, और मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा फ़र्क होता। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन है प्रॉफिट और लॉजिट में से क्या आपको अच्छा लगता है फ्रेंकली। सो प्रॉफिट मॉडल आपको कट वैल्यूज़ भी दे रहा है, कोफिशिएंट की वैल्यूज़ भी दे रहा है जो Z स्कोर में चेंज को इंडिकेट करते हैं फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन द वेरिएबल फॉरन लेंथ एंड MPG। तो ये जो एग्जांपल थी ये ऑर्डर्ड प्रॉफिट मॉडल की एग्जांपल थी। लेकिन अभी जैसे बात हुई, अगर आपके पास ऐसे वेरिएबल्स हों जैसे आपकी ऑक्यूपेशनल चॉइस है, लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल। पहली एग्जांपल थी आपकी एजुकेशनल स्पेशलाइजेशन। अब हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्यूपेशनल चॉइस की, कैटेगरीज ऑफ जॉब्स। ये मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं, उनको हम कैटेगराइज कर दें, जैसे मर्जी कैटेगरी बना लें, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर एट्सेट्रा, या कमीशनड और नॉन कमीशनड की कैटेगरी बना लें, या आप स्केल्स बना लें 1 2 3 4 अप टू 21, ये भी कैटेगरीज हैं। सो ऑक्यूपेशनल चॉइस बेसिकली स्केल्स नहीं है बल्कि कैटेगरी ऑफ ऑक्यूपेशन है कि किस किस्म की जॉब आप कर रहे हैं। आप अकाउंट्स में जा रहे हैं, आप इंजीनियर बन रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, ये कैटेगरीज हैं। सो इन कैटेगरीज में कोई किसी से सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है,
कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है, सो हम ऑर्डर्ड प्रॉबिट नहीं लगा सकते। इसके लिए हमारे पास मल्टीनोमियल प्रॉबिट मॉडल्स मौजूद हैं और उसकी कमांड सेटा में होगी, आप गैस कर चुके होंगे, एम प्रॉबिट। जैसे यू हैड लॉजिट एंड देन यू हैड ओ लॉजिट फॉर ऑर्डर लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड देन यू हैड एम लॉजिट, या बाज लोग इसको एम लॉगिट भी प्रोनाउंस करते हैं। सो ये मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन थी। सिमिलरली 3 कैटेगरीज यहाँ हैं, प्रॉबिट, ओ प्रॉबिट जो भी आप यूज कर चुके हैं, एंड देन एम प्रॉबिट, मल्टीनोमियल प्रॉबिट रिग्रेशन जो अभी हम यूज करेंगे। तो ये कब होगी मल्टीनोमियल प्रॉबिट रिग्रेशन? जब आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल मल्टीपल कैटेगरीज रखेगा, मोर देन 2, और वो कैटेगरीज ऐसी होंगी कि उसमें आप किसी किस्म का, उनके असल जो फिनोमेना है पीछे, उनमें किसी किस्म का ऑर्डर आप नहीं देखते। सो 2 एग्जाम्पल ज़हन में रखिए, एक आपकी ऑक्यूपेशनल चॉइसेस है और एक आपकी एजुकेशनल स्पेशलाइजेशन है। तो याद रखने के लिए एजुकेशनल स्पेशलाइजेशन एक अच्छा वेरिएबल है क्योंकि आप इस फेज से अभी गुजर रहे हैं। तो एम प्रॉबिट जो है वो फिट करेगा एक मैक्सिमम लाइकलीहुड मॉडल, जो कि एक प्रॉबिट मॉडल होगा मल्टीनोमियल कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, यानी पॉलीटमस वेरिएबल आपका इस 2 से ज़्यादा कैटेगरीज, डाइकोटमस होता अगर 2 कैटेगरीज होती। सो पॉलीटमस वेरिएबल मल्टीपल कैटेगरीज के साथ अगर वेरिएबल हो, जैसे ऑक्यूपेशनल चॉइस और आपकी एजुकेशनल स्पेशलाइजेशन, तो फिर आप मल्टीनोमियल प्रॉबिट मॉडल यूज करेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, कैटेगोरिकल आउटकम्स, ये मेन्यू है जो आप क्लिक करके ये रिग्रेशन रन कर सकते हैं अगर आप यूजर इंटरफेस यूज करें आसानी के लिए। स्टैटिस्टिक्स, देन कैटेगोरिकल आउटकम्स, देन इंडिपेंडेंट मल्टीनोमियल प्रॉबिट, ये सीक्वेंस है। सिंटेक्स नीचे दिया हुआ है। इफ यू वांट टू नो द सिंटेक्स तो आप हेल्प एम प्रॉबिट लिखेंगे, सिंटेक्स आपके सामने आ जाएगा। एनीवेज, एम प्रॉबिट, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इफ इन एंड वेट कंडीशंस एंड ऑप्शंस, ये वही सिंटेक्स है जो ओ प्रॉबिट में या ओ लॉजिट में आपको नजर आया था। तो हम एक और फाइल यहाँ यूज करते हैं नेट से, जो स्टेटा वालों की ही फाइल है, उन्होंने इसी मकसद के लिए रखी हुई है। सो याद रहे कि नेट से अगर आप कोई फाइल यूज करते हैं तो उसकी कमांड है वेब यूज, उससे वो फाइल खुल जाएगी अगर नेट पे अवेलेबल है, नेट चल रहा है। सो वेब यूज sysdsn1 ये फाइल का नाम है, एंड क्लियर। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस डाटा है बेसिकली। सो ये कहाँ से हमें पता चला? जाहिर है आप गैस कर चुके होंगे। पहले हम डाटा को समझेंगे, ये एक नई फाइल खोली है हमने, सो डाटा को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम रिग्रेशन रन करेंगे, जो भी सूटेबल रिग्रेशन हुई। अभी हमें कुछ नहीं पता, सो हम कैसे क्या करेंगे? डिस्क्राइब, समराइज, टेबुलेट, टैब स्टैट, लिस्ट अगर ज़रूरत पड़े तो ये हम कमांड्स, फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब का रिजल्ट आप देख रहे हैं, कंटेन्स डाटा फ्रॉम सच एंड सच वेबसाइट, हेल्थ इंश्योरेंस डाटा, 644 ऑब्जर्वेशंस एंड 13 वेरिएबल्स। तो इसमें बहुत से वेरिएबल्स हैं, पेशेंट आईडी, नो इंश्योरेंस, एज है, मेल, ये एक डमी वेरिएबल होगा जो जेंडर को शो करेगा, पीपीडी 1 2, नॉन वाइट ये रेस को शो कर रहा है, पीपीडी इंश्योर ये कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा, और साइट ये भी कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा। कैसे पता चलेगा? जाहिर है आप टैब करेंगे। समराइज बताएगा कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। आप देख रहे हैं बहुत सी वैल्यूज़, मिनिमम या मैक्सिमम 0 और 1 है। तो ये बाइनरी वेरिएबल्स हैं। जैसे मेल, ये जेंडर का बाइनरी वेरिएबल है। मेल नाम बता रहा है कि इट इज़ 1 फॉर मेल, अगर वैल्यू 1 होगी रिस्पोंडेंट इज मेल, अगर 0 होगी रिस्पोंडेंट इज फीमेल। तो इसी तरह एज है, एवरेज एज इज 44 ईयर्स, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 86 ईयर्स। तो इसी तरह आपके सामने इंश्योरेंस की और साइट की कैटेगरीज हैं। आप देख रहे हैं कि ये 0 1 वेरिएबल नहीं है इंश्योर। लुक एट द लास्ट 2, इंश्योर और साइट, इनकी वैल्यूज रेंज कर रही हैं 1 से लेकर 3 तक। इसका मतलब है हो सकता है यही कैटेगोरिकल वेरिएबल हो, तो ये हमें टैब से पता चलेगा। सो टैब 1 इंश्योर एंड साइट। अब आप देख रहे हैं टेबुलेशन, इससे हमें पता चलता है कि इंश्योर की 3 कैटेगरीज हैं, इंडेमनिटी, प्रीपेड, अनइंश्योर। अब ये कैटेगरीज हैं, इसमें इंडेमनिटी, प्रीपेड, अनइंश्योर, इसमें किसी किस्म का ऑर्डर मौजूद नहीं है। तो इनको हमने ज़ाहिर है एनकोड किया हुआ है एज 1 2 एंड 3। जब हम लिस्ट करेंगे ये डिस्प्ले होगा इंडेमनिटी वगैरह, लेकिन ये न्यूमेरिक एनकोडिंग हो गई है। सो इसकी डिस्प्ले जो है वो इंडेमनिटी, प्रीपेड और अनइंश्योर के तौर पे होती है, लेकिन पीछे हमने एनकोड किया हुआ है एज 1 2 एंड 3। अब ये 1 2 और 3 में डेफिनेटली 3 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन अनइंश्योर इज नॉट ग्रेटर देन इंडेमनिटी। आप समझे कि कैटेगरी में ऑर्डर्स मौजूद नहीं है, इसीलिए हम यूज करेंगे मल्टीनोमियल प्रॉबिट इंस्टेड ऑफ ऑर्डर्ड प्रॉबिट। सो इसी तरह आप देख रहे हैं टेबुलेशन फॉर साइट,
यहाँ भी साइट में 1, 2 एंड 3 वैल्यूज़ मौजूद हैं, उनकी आगे फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं। ये भी एक पॉलीटमस कैटेगोरिकल वेरिएबल है। सो अगर हम मल्टीनोमियल प्रॉबिट रन करना चाहें, द कमांड इज एन प्रॉबिट। इसका रिजल्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले नोट करें आइट्रेशंस। ये आइट्रेशंस 3 हैं फिलहाल, ज़्यादा भी हो सकती हैं। सो ये आइट्रेशंस जारी रहती हैं जब तक आपकी लॉग लाइकलीहुड मैक्सिमाइज नहीं हो जाती। सो लॉग लाइकलीहुड जब मैक्सिमाइज हो जाएगी वो नीचे रिपोर्ट भी होगी। फॉर एग्जाम्पल आइट्रेशन 3 देखिए, लॉग लाइकलीहुड इज -542.54। यही वैल्यू नीचे मेन रिग्रेशन में रिपोर्ट हो रही है, लॉग लाइकलीहुड इज -542.54, वही वैल्यू है। ये मैक्सिमम लॉग लाइकलीहुड। अब इस लॉग लाइकलीहुड के ऊपर बेस करके हम कंप्यूट करते हैं वॉल्ड का स्क्वायर जो राइट साइड पे दिया हुआ है, और इसकी बेस पर इसकी पी वैल्यू देख के हम देखेंगे कि ये मॉडल कितना अच्छा फिट है। सो पी वैल्यू इज 0.0011। ये 0.01 से कम है। इसका मतलब है वी कैन कंक्लूड एट 1% दिस फिट इज गुड। अब याद रहे अभी आपने ऑर्डर्ड प्रॉबिट मॉडल किया और प्रॉबिट मॉडल किया, उसमें आपने देखा कि रिजल्ट में आपके पास कुछ कॉफिशिएंट्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको। तो इंश्योर की 3 कैटेगरीज हैं असल में। हर कैटेगरी के लिए अलहदा कॉफिशिएंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन एक कैटेगरी रेफरेंस या बेस आउटकम कहलाएगी। इसका मतलब है जो आप देख रहे हैं इंडेमनिटी बेस आउटकम, ये एक रेफरेंस वेरिएबल, एक रेफरेंस कैटेगरी है। आगे प्रीपेड के लिए आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की लिस्ट है, एज, मेल, नॉन वाइट, साइट। यही लिस्ट आपके पास अनइंश्योर या तीसरी कैटेगरी के लिए मौजूद है। तो यानी हर कैटेगरी के लिए कॉफिशिएंट्स मौजूद हैं। अब ये कॉफिशिएंट्स की इंटरप्रिटेशन होगी विद रेफरेंस टू द बेस आउटकम या इंडेमनिटी, जो इस केस में इंडेमनिटी है। सो लुक एट द पी वैल्यूज। प्रीपेड केस में सब सिग्निफिकेंट है, और अनलकीली अनइंश्योर के केस में सिवाय कांस्टेंट के कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सो मेन चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये कि आपके पास 3 कैटेगरीज हैं। तीनों कैटेगरीज के लिए आपको बताना है प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी वेरिएबल का इफेक्ट क्या है। सो एक बेस कैटेगरी बन जाएगी, जैसे आपका डमी वेरिएबल्स में एक रेफरेंस होता था, वो इंक्लूड नहीं करते थे हम रिग्रेशन में, और बाकी इंक्लूड करते थे। सिमिलरली यहाँ पे एक कैटेगरी विल बी ट्रीटेड एज द बेस, और बाकी 2 कैटेगरीज के लिए आपके पास कॉफिशिएंट्स की लिस्ट है। इंटरप्रिटेशन वैसे ही करेंगे प्रोबेबिलिटी साइंस देख के। फॉर एग्जांपल एज बढ़ने से प्रीपेड होने का चांस कम हो जाता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो याद रहे कि प्रॉबिट मॉडल लगा रहे हो या लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा रहे हो, पहली शर्त यह है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैटेगरीज रखता हो, डिस्क्रीट कैटेगरीज। अब वो जो कैटेगरीज हैं उनकी आगे किस्में हो सकती हैं। बाइनरी 2 वैल्यूज, सो आप प्रॉबिट या लॉजिट कमांड यूज करेंगे स्टेटा में। और अगर 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं, सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ओ लॉजिट या एम लॉजिट इस्तेमाल करेंगे या ओ प्रॉबिट या एम प्रॉबिट इस्तेमाल करेंगे। सो प्रॉबिट या लॉजिस्टिक में से चॉइस करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो पॉलीटमस वेरिएबल है ज़्यादा कैटेगरीज वाला, इसमें कोई ऑर्डर मौजूद है या नहीं, ये आपने डिसाइड करना है, मशीन ने नहीं। सो आप जब डिसाइड करेंगे उसके मुताबिक आप ऑर्डर्स देखेंगे, तो ओ प्रॉबिट या ओ लॉजिट, और ऑर्डर्स के बगैर पॉलीटमस वेरिएबल है, सो एम प्रॉबिट या एम लॉजिट आप लगा सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।